Hello guys, welcome to Vision Success. Guys, in this video we will discuss about how to prepare current affairs for UPSC. UPSC current affairs is undoubtedly the most important portion of UPSC IAS exam. Clearing civil services without a proper command over the current affairs is very difficult. और एस्पिरेंट्स के ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है सारे एस्पिरेंट्स के, हाउ टू अप्रोच करेंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी, हाउ टू मेक नोट्स ऑन करेंट अफेयर्स, हाउ मच टाइम टू डिवोट फॉर करेंट अफेयर्स। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत से एस्पिरेंट पूछते हैं। गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर करेंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। So, what is the strategy? With the change of civil services examination syllabus and pattern from 2013, current affairs have come to play a very important role in the preparation of UPSC IAS exam, as it requires knowledge about the current developments both nationally and internationally. The UPSC syllabus for prelims specifically mentions current events of national and international importance, and this part of the syllabus is commonly referred to as the current affairs. Though UPSC has included the current affairs in the examination, the syllabus of current affairs is not well defined both for prelims and mains. Therefore, aspirants have to do a good amount of newspaper reading so as to have a strong hold on the करंट रिलेटेड इश्यूज। गाइस, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, तीनों के लिए करंट अफेयर्स में आपका कमांड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स आपके सिलेक्शन में क्या रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। करंट अफेयर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ सिविल सर्विसेज examination, in the preliminary examination, mains and the personality test. In prelims, each year at least 20 to 25% of question paper consist of current affairs. Even questions on core subjects like polity, economy, environment, science and tech are based on the current affairs linked to the core subject. अब हम बात करेंगे मेंस के बारे में। Most of the questions asked here are more or less connected to the current affairs. Being updated with current happenings allow aspirants to cite examples, facts and figures etc to enhance the quality of answers. तो अगर आपको मेंस में अच्छे आंसर राइट करने हैं तो आपको करंट अफेयर्स में अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, आप जब भी करंट अफेयर्स जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाते वक्त गाइज आपको टेक्स्ट मेथड नहीं यूज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, फिगर्स बनाओ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे होगे। अब गाइज हम बात करेंगे इंटरव्यू की। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू आर मोस्टली नॉट फैक्चुअल इन नेचर, रेदर very generic ones and revolve around the current happenings only. Being well versed with the current events is very crucial for the personality test. Guys, current affairs helps in connecting the theory portion of the subjects with that of their practical applicability. This helps in more clarity in understanding of the topic. UPSC question papers are becoming more analytical in nature, and thus the role of current affairs has become more important as it helps in understanding the topic with more multiple and practical perspective. Subjects like polity, economics, environment, where facts and figures keep on changing, and UPSC has the habit of putting some facts in questions or even in options, so it becomes essential to have some idea about them. In recent years, we have seen that the importance of current affairs has increased enormously in the preliminary as well as the mains examination. Guys, आप देख सकते हो 2013 में 28 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से, 2014 में 20 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 29,
2016 में 27 एंड 2017 में सबसे ज़्यादा 34 क्वेश्चंस, एंड 2018 में 28 एंड 2019 में 22। ठीक है, तो ये एक आपके सामने मैं एनालिसिस दिखा रहा हूँ करेंट अफेयर्स के, कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आप ये देखोगे किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब गाइस हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज टू कवर करेंट अफेयर्स। तो कहाँ से पढ़ना है हमें? तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे सभी एस्पिरेंट्स के लिए, द हिंदू। It is the best source to prepare for social, economic and political issues. The editorials and opinions give a candidate views on the government schemes and policies. तो आप एडिटोरियल्स और ओपिनियंस जब पढ़ते हो ना, आंसर राइटिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका। ठीक है, आप एक यहाँ से पैटर्न देखते हो कि किस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप अपने ओपिनियन में दे सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आप वहाँ पे आंसर राइटिंग कर सकते हो, किस मेथड में, कैसे वर्ड्स और कैसे लैंग्वेज में आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो हमारा होगा वो है द इंडियन एक्सप्रेस। या तो आप द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। इन इंडियन एक्सप्रेस द आर्टिकल्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस आर कवर्ड comprehensively and some of them are written by IFS officers. The explained page of the newspaper is very important as it helps in comprehensive coverage of an issue. Guys, आप ये कर सकते हो, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को लेकर चलो, क्योंकि दोनों में चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। ठीक है, द हिंदू तो भाई आप जान ही रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो जनसत्ता को भी फॉलो कर सकते हो। तीसरा सोर्स जो होना चाहिए हमारा करेंट अफेयर्स के लिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। इट हैज़ टू बी रेफर्ड टू कवर द प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन अ डेली बेसिस। ऑफन एट द प्रीलिम्स स्टेज द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ स्कीम और मिशन आर आस्क्ड, thus referring to the PIB becomes important. In the mains exam, writing government initiatives and answer helps to enrich the qualitative aspect of it. In the personality test, often the interview board asks a candidate about different initiatives taken in a specific sector. For instance, a candidate can be asked about what all steps have the government taken for women empowerment. Here the candidate has to list out the initiatives taken by the government towards women's well-being. अब PIB के बाद हम बात करते हैं योजना और कुरुक्षेत्र। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? These magazines are important because they are published by the government of India and the articles comprise of diverse topics from society to economics. It also gives a detailed analysis of the government schemes and initiatives. It is also an important source to get data on different issues. तो योजना कुरुक्षेत्र तो आपको बिल्कुल मतलब छोड़ना ही नहीं है एक भी मंथ का। ठीक है, तो इसे आप कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा टीवी की। तो राज्यसभा टीवी में द बिग पिक्चर ये आपको देखना है। इट शुड बी वॉच्ड बाय कैंडिडेट्स टू फॉर्म ओपिनियन on current topics because topics are discussed in detail by experts who many times have been government official in the past or currently serving with the government. They help you generate and get different perspectives and dimensions which is difficult to understand from the articles. In short, it gives you a lot of quality information in a less amount of time. तो गाइज आपको राज्यसभा टीवी में द बिग पिक्चर देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गाइज आज की जो मीडिया डिबेट्स होते हैं वो आप मत देखिए, क्योंकि किसी काम के नहीं होते हैं। हाँ, आप एक काम और भी कर सकते हो। ठीक है, आप जी न्यूज़ का जो DNA आता है वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी जो एनालिसिस दी जाती है
सम टॉपिक्स, मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया जाता है उसका, तो वो भी एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है। ठीक है, अब गाइज हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर, जो आपके लिए कवर करना इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में न्यूज़ रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, द एक्सटर्नल सेक्टर, इंडियन एंड इट्स ट्रेड एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। सो गाइज इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो आपके हैं यहाँ पर, ठीक है, उनको आपको कवर करना है। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो उसके नीचे लिख दो कि ये किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, किस टॉपिक से बिलोंग करता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा गाइज। इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ना है? थ्रेटेंड स्पीसीज, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, डिफरेंट एग्रीमेंट्स एंड इनिशिएटिव बोथ आर द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगा इन्वायरमेंट कवर करने के लिए न्यूज़पेपर, पीआईबी, कुरुक्षेत्र योजना, ये सब आप पढ़ो, ठीक है। बट इसके साथ ही साथ आप साइंस रिपोर्टर करके मैगजीन आती है, उसको भी प्रेफर करो। वो आपकी साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, पॉलिटी में आपको जो न्यूज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट, डिफरेंट बिल्स एंड एक्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट्स रिलेशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट, स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इसरो, डिटेल्स अबाउट द सैटेलाइट्स लॉन्च, डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे आप साइंस एंड टेक के भी साइंस रिपोर्टर अगर आप पढ़ो और न्यूज़ पेपर रीडिंग करो तो ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको क्या पढ़ना है? इंडियाज़ बाइलेटरल रिलेशंस विथ कंट्रीज, डिफरेंट मल्टीलेटरल्स एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स। तो आपका इंटरनेशनल इवेंट्स में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है, कि किसी कंट्री से कैसा रिलेशन, अभी जैसे चाइना, नेपाल से हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके पर्सपेक्टिव में आपको देखिए, अभी जो न्यूज़पेपर में आया वो तो पढ़िए, साथ साथ इसकी हिस्ट्री क्या है ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। न्यूज़ रिलेटेड टू नेशनल हेरिटेज साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, डिफरेंट नेशनल एंड रीजनल फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स, आर्ट एंड पेंटिंग्स, डिफरेंट इवेंट लाइक द वन महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारे आपके आर्ट कल्चर में आएंगे। तो ऐसे फेस्टिवल्स जो होते हैं, डांस फॉर्म जो होंगे और जो नेशनल हेरिटेज हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज रखना ज़रूरी है। गाइस, सिंपली पुट करंट अफेयर्स हैज़ नाउ बिकम द फल्क्रम इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। द रेंज ऑफ टॉपिक्स दैट नीड टू बी कवर्ड इज इनॉर्मस, हैंस करंट अफेयर्स नीड टू बी स्टडीड बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ने के साथ एफिशिएंटली, मतलब कि वो चीज़ें आप कितने ज़्यादा अपने अंदर समाहित कर रहे हो, ठीक है। सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर करेंट अफेयर्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग इन योर डेली रूटीन, फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। प्रिपरेशन ऑफ करेंट अफेयर्स overlaps with the core subjects that need to be studied for civil services exams such as geography, polity, economics, science and technology and environment. Thus, dividing current affairs into a watertight compartment is difficult and it need to be focused on in sync with the static portion. Habits should be inculcated where if the name of place occur which the candidate is not aware, it should be looked up in the atlas. तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो एटलस सामने रखो। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जब आप देख रहे हो तो गलवान घाटी कहाँ पर है, ठीक है,
काला पानी कहाँ पे है, लिपू लेक कहाँ पर है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानो कि जो आपका नेपाल और भारत के बीच में हो रहा है, जो आपका चाइना और भारत के बीच में हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश की किस क्षेत्र में विवाद चल रहा है, सिक्किम के किस क्षेत्र में विवाद चल रहा है, आपका लद्दाख में कहाँ पे विवाद चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, द स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी नोटेड डाउन एज पर्सनल नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि आप बैठ के पूरा छाप रहे हो पेपर, बैठ के पूरा योजना लिख डाल रहे हो, ठीक है, तो दोबारा योजना को पब्लिश नहीं करना है आपको, ठीक है, तो उन्हीं पॉइंट्स को लिखिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। साथ में डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और फिगर्स का यूज करो, ठीक है। जितना कम वर्ड्स में राइट कर रहे हो उतना ही अच्छा है, ठीक है, जिससे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आप जल्दी से रिवीजन कर सको उस चीज़ को। क्योंकि फिर आप बड़ा सा एक देख रहे हो कि बड़ी सी कॉपी या बड़ा सा एक नोट्स आपका बंडल जैसा बन गया है, अब उसको बैठ के पढ़ना, मतलब देख के डर जाएगा बंदा ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर कंटेंट इज़ नॉट इनफ, वन मस्ट ट्राई टू लुक अप द स्टैटिक पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड एसोसिएटेड विद द न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ सार्क इज इन न्यूज़, वन मस्ट लुक अप what countries is the SAARC constituted of, where is the SAARC headquarters situated, etc. This will give a comprehensive understanding of any topic which is being studied. UPSC has not been asked direct questions about the current development, but it takes up an issue of the current happening and asks questions related to it and its background. For example, in January 2019, the Caspian Sea was in news because of talks and meetings being held to declare it a sea or lake. In the prelims examination of 2019, the countries around the Caspian Sea was asked. By looking up the previous year questions asked in the prelims and mains examination, a candidate can get an idea as to which areas of the newspaper one have to focus on to maximize वंस एफिशिएंसी। तो इस चीज़ को आपको देखना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और वहाँ पे देखो कि करेंट अफेयर से कैसे टॉपिक आए हैं, ठीक है, और किस तरीके से रिलेट किया गया है उसे सब्जेक्ट से। इन सारी चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करेंट अफेयर्स कंटेंट, बट इट इज़ एडवाइज टू स्टिक टू अ फ्यू सोर्सेज एंड स्टडी देम कंप्रहेंसिवली rather than reading multiple resources and revising them only a few times, ठीक है। तो अब जैसे एक वीडियो आपने देखा, ठीक है, अब उसको आपने 3-4 चैनल से देखा, ठीक है, अब आपके मन में डाउट कि इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, तो वो डाउट जो आता है ना वो क्लियर नहीं होता। अब ऐसे ऑफलाइन मेथड में अगर आप रीड कर रहे हो तो क्या हुआ कि आपने इस बुक से पढ़ा, इस बुक से पढ़ा, इस बुक से पढ़ा, 3 बुक्स से आपने पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ और बोला गया, यहाँ से पे कुछ और बोला गया। वही आपने हिस्ट्री पढ़नी है, आपने स्पेक्ट्रम उठाई और 10 बार पढ़ ली, ठीक है। तो अब हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि एक सोर्स पे ही आप लगे रहो और जितना ज़्यादा लग सकते हो उतना ज़्यादा लगे रहो, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर द मेंस एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स आर मोर लाइकली टू कम एज क्वेश्चंस, देयरफॉर preparing current affairs would not only help a candidate to attempt the questions but also help them in writing the answer better and fetch higher marks. Okay, next point हमारा है, during the UPSC interview a candidate's assessment is not only made on his intellectual abilities but also his social traits and his level of awareness about the events which are happening all around the world इन हिज ऑन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट और आपके देश के साथ साथ दुनिया में क्या घटित हो रहा है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। अगर पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल पे फर्स्ट टाइम थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।